So today's class is mainly based on the mathematical formations of economics, different types of mathematical ideologies which will be incorporated in order to solve questions of micro and macro both. I will be discussing as much as possible. This will not be possible for me to complete it in a single session. So it will be in continuance to the next session as well. While the session is going on, you can ask me questions and text me as well at 90623952123. So let's get started. Okay. And I'll be choosing some questions from different papers as well in order to show you some examples of it. Okay. So let's get started with the different types of mathematical questions which you are going to face at the time of examination. Okay. So today we are discussing this thing. For example, very recently, I've seen that the number of questions for the mathematical base with a lot of idea is been coming in lot. So one question particularly in macro, you get to see one of the ISLM question and one from the simple Keynesian model and one from the Phillips curve and one from the solo growth model. This is fixed. Macro doesn't have a huge variety of numerical questions. But when it comes to micro, every chapter is X ever correct type. Okay. Everyone is acting as others' boss. I don't know. It's just like the newcomers are also playing. So, but here also some zones are hard. जैसे मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के ऊपर सम्स अगर आता है तो आप लोगों को प्रॉब्लम होता है. Game theory अभी भी many of the people's nightmare. Some questions on general equilibrium is a problem, and some questions on uh, cost based problem. Cost लग रहा है सर इतना आसान है आप cost को क्या टफ बोल रहे हो? But even cost can be very costly in some scenarios. So we will do a touch up with respect to different kind of zones so that you can get an understanding. Okay. First things first, I hope everyone have a basic knowledge about derivative integration and all these things are okay with you. Okay, nothing is okay completely in my class. So you need to be asking me every question whenever you get stuck into anything. Okay. तो चलिए शुरू करते हैं. And also, yeah, RP. RP is also a very tough chapter to get a grip on. What is RP? क्या भाई RP क्या है? Reveal preference. Okay. तो आएंगे इसके ऊपर भी. Let's start with relatively easy peasy consumer based one or two numerical questions. And they directly give this thing. So intentionally I'm starting with this thing and not with a boring logical topic. ये सबसे नहीं. And remember that this is not a math eco session. Okay, I'm just not solving some math eco question, but this is imbibed into both. Okay. So consumer is there. And if they give you a function, it's easy to do it. Like u equal to utility function of xy
Okay, where it is like x squared plus 3xy utility function subject to a budget constant like 5x plus 7y less than equal to 15, and you find it, you do it like a Lagrangian formation. ये करते हो आप आपसे solve हो जाता है. But what happens if they directly give you a function y is a function of x comma, sorry, maybe like utility is a function of maybe x and y. Okay. But rather say they give utility is a function of, and this thing is differentiated with max of x comma y. U equal to max of x comma y. Now, under what circumstances u will be max? So utility will be maximized if, rather say, let me make it much more complicated, minimum of x comma y. Okay. Okay. So under what circumstances you will reach the maximum level of utility? You can't differentiate. It's like not like ux equal to this thing, uy as a du dx कर नहीं सकते. Anything is not allowed. So here this is only possible if x equal to y. Now if these two are complementary structure, they have used. So if x, so this is a utility function with respect to complementary products. So say function देखकर you have to judge the function. If x greater than y, then the difference x minus y is wasted. Because you anywhere going to take the minimum value. So this is the extra x minus y. If y is greater than x, then the difference y minus x is wasted. भाई दोनों तरफ से फंस रहे हो आप. बचने का रास्ता क्या है? कोई है बचने का रास्ता आपके लिए? Yes or no? बचने का रास्ता यही है कि कुछ वेस्टेज ही ना हो. So if x and y, so no wastage. So then the consumer reaches to the u max value. A really good book on this thing is Nicholson and Snyder. रिसेंट टाइम में बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से डायरेक्ट कॉपी पेस्ट होके भी आए हैं. ओके, आमतौर पर मैं ऐसे हिंट नहीं देता हूँ, बट दैट्स ट्रू. इसका मतलब नहीं कि निकलसन स्नाइडर कर लिया और आपको सारा एक्सरसाइज का सॉल्यूशन मिल गया, बट दिस इज ऑलमोस्ट अ कॉम्प्रिहेंसिव बुक after Varian, obviously. Varian for the basic. Varian has two books. One is intermediate microeconomics, second one is microeconomic theory, थोड़ा हाई लेवल के लिए, और एक है वही क्वेश्चन आंसर टाइप का जो किताब आता है. ठीक है, दैट इज वर्कआउट्स ऑफ माइक्रोइकोनॉमिक्स थ्योरी. ओके, वर्कआउट वाला बुक मिलता है, उसका सोल्यूशन भी इंटरनेट में मिल जा सकता है, लेकिन वो सोल्यूशन से फायदा नहीं, उसमें सिर्फ आंसर्स लिखे रहते हैं, कैसे निकलेगा वो नहीं दिया रहता. ओके, मेरे पास उसका सोल्यूशन वाला पीडीएफ भी था, लेकिन है नहीं है. ओके, इफ आई गेट इट आई विल सेंड इट टू यू. Let's see. Anyone have the Nicholson Snyder PDF with you? आज इसके एक्सरसाइज से कुछ कुछ चीजों से स्टार्ट करेंगे. है कि नहीं है? मैं भेजूं? ओके, मैं ही निकालता हूँ भाई. Take me 1 or 2 minutes time. Just give me that. I will give an extension at the end today.
हाँ हो सकता है ड्राइव में होगा। तो मैं पहले अभी कराता हूँ, फिर एक एक्स्ट्रा स्पेशल सेशन लेंगे इसके ऊपर, उसमें सिर्फ सोल्यूशन ही कराएंगे। u इक्वल टू, दे हैव गिवन अ फंक्शन, ठीक है, u ऑफ x1 x2 इक्वल टू अल्फा log x1 प्लस बीटा log x2, डायरेक्ट फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है। और यूटिलिटी फंक्शन कुछ ऐसा है, x1 टू द पावर अल्फा x2 टू द पावर बीटा, तो क्या है, दे हैव गिवन अ क्लेम, क्लेम ये है कि for the Coke-Douglas utility function, budget shares of all goods are independent of prices and income. Okay. So this is a Coke-Douglas structure. So what is the Lagrangian here? Lagrangian कैसा रहेगा? This is a Coke-Douglas function alpha log x1 plus beta log x2 minus lambda into budget line p1 x1 plus p2 x2 minus m. ऐसा IAS और MSQ दोनों में ही सवाल आते हैं सब देखते हैं. So this is a claim. So del L, del x1, if I do it, so this is alpha by x1 minus lambda p1 equal to 0. And del L by del x2 क्या है? Beta by x2 minus lambda p2 equal to 0. Isn't it? And del L by del lambda क्या होगा? Minus m equal to 0. Is the thing. So these first two condition क्या imply करता है? First two conditions imply that P1 x1 equal to alpha by lambda, P2 x2 equal to beta by lambda. Okay. Combining the two expression and the last condition, what you will get? Alpha by lambda is what? P1 x1. Sorry. Alpha by lambda plus beta by lambda minus m. This value is equal to 0. Because this is nothing but P1 x1 plus P2 x2 now. And that is equal to m. Or we can say that lambda equal to 1 by m, because alpha plus beta equal to 1. Yes, alpha plus beta by m. This will be actually alpha plus beta by lambda equal to, if we have missed out this step, I'm just doing it again. Done? So m का value क्या है? 1 by lambda equal to m or lambda equal to 1 by m. So now we can form it x1 equal to alpha by p1 whole into m and x2 equal to beta by p2 whole into m. So here we can say that they have asked for the Coke-Douglas utility function, budget shares of all the goods are independent of prices and income. Now budget share में क्या आएगा? What is the budget share? P1 x1 is the budget share for the first product. So what is P1 x1? Alpha by P1 into m into P1. So that is alpha m only. इसमें तो P1 है ही नहीं, प्राइस भी नहीं है, क्वांटिटी भी नहीं है. Similarly P2 x2. So the claim is right. So now the question paper levels are changing. You cannot expect like old school type things.
Any questions till now? So the question's objective was to find the valid claim. No. They said that examine the validity of the following for the Cobb-Douglas production utility function. Budget shares of all the goods are independent of prices and income. Okay. Okay. So now I'm sending you a Nicholson Snyder book to everyone. Okay. Walter Nicholson and Christopher Snyder. मिल गया किताब. 10th edition किताब. Okay. This is the book. Sending it to you. Have a look. है किसी के पास ये निकल्सन एंड स्नाइडर एट होम हार्ड कॉपी मतलब पीडीएफ अच्छे फोन है বার করো लैपटॉप ऑफिस में लाया करो. फोर्टी 47 MB का है. 2 से 1 मिनट में डाउनलोड हो जाना चाहिए. ये किताब से 3-4 दिन में आप लोगों को ये पूरा करना पड़ेगा. सो दिस विल बी एंटायर माइक्रो का मैथिको वर्जन. देखो मैथिको हम लोग कहाँ से करते थे? सिल्वरबर्ग या फिर आई हैवंट सेंट येट. अब सबके पास जाएगा. देखो एक पार्टी के को भेजा है, अब दूसरा पार्ट भेज रहे हैं. मैं हमेशा अपने आप को अपडेटेड रखता हूँ भाई. झमेला ही नहीं है. ये सब किताबें बहुत ढूंढने में मुश्किल होता है. इट्स नॉट सो इजी टू फाइंड. कुछ किसी को मिला? यस और नो? এই তোমরা সবাই পেয়েছো? Yes, sir, পেয়েছি. ওকে. Yes, sir. অঙ্কিত নিকলসন স্নাইডার পিডিএফ. অর্ক প্রো পেয়েছে. আচ্ছা বর্ষনা? হ্যাঁ স্যার পেয়েছি স্যার. চন্দ্রিমা? হ্যাঁ স্যার পেয়েছি. চন্দ্রিমা রিপ্লাই দেয় না. Sai, have you got the PDF of Nicholson and Snyder? Yes, sir. Shritika? Yes, sir, I've got it. Very good. आज एक legendary class होने वाला है हमारा. बहुत इंटरेस्ट सोच के रखा आज. बोलो इस किताब. ना 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 ना. इसके एक्सरसाइज में कुछ कुछ चीजों को हम लोग करेंगे. ओके. चैप्टर 2 में चले जाओ. मिला चैप्टर 2? अच्छा यहाँ 2 अलग अलग पेज नंबर है. किताब का पेज नंबर और बुक का पेज नंबर अलग है. मुझे जरा बताओ तो पेज नंबर कौन से में है? हाँ एक्सरसाइज में जाने का.
Okay, finally found. So now we are solving. I will write the questions, don't worry. एक काम तुम लोग करना, तो इसका सारे एक्सरसाइज का पेज नंबर सिर्फ लिख के रखना, ठीक है? इट विल बी इजियर फॉर मी टू फाइंड आउट देन। पीडीएफ का पेज नंबर है 94, ठीक है, और बुक का पेज नंबर है 75। पीडीएफ का पेज नंबर है 94। सो प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशंस। सपोज दैट एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू एक्स वाई, ठीक है, ये दिया हुआ है। फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ इफ एक्स एंड वाई आर कंसिडर्ड टू सम टू 1। एक्स प्लस वाई करने से सिर्फ 1 आएगा, ये इन लोगों ने बोला है, ठीक है। वेरी इजी, वेरी डायरेक्ट क्वेश्चन, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। सॉल्व द प्रॉब्लम, ये जैसे मैंने पिछले तरीके से सॉल्व लाइक अबाउट। ये 2.1 हो गया, ठीक है। 2.2 डुअलिटी का प्रॉब्लम है। हम लोग एक टफ सवाल से स्टार्ट कर रहे हैं अपना जर्नी 2.3 नंबर से। 2.3 से दिया है हाइट ऑफ अ बॉल थ्रोन स्ट्रेट अप। अच्छा, ये इकोनॉमिक्स का थोड़ा कम टाइप का क्वेश्चन है, इसीलिए पहला क्वेश्चन के वो थोड़ा सा मैं ज्यादा ट्विस्ट नहीं दूंगा। टू 2.4 सेकंड, ठीक है। 2.4 से स्टार्ट कर रहे हैं, ओके। 2.4 सवाल ये है, सपोज दैट द मार्जिनल कॉस्ट फंक्शन, ये आईएएस में आया, ठीक है, 21 या 20 में। सो एमसीक्यू इज q प्लस 1 डायरेक्टली। इट्स अ शॉर्ट रन और लॉन्ग रन फंक्शन, सिर्फ देखने को बताना है। देखिए मार्जिनल कॉस्ट ये है, तो टोटल कॉस्ट क्या होगा भाई? इसका इंटीग्रेशन, नॉर्मल इंटीग्रेशन क्या होगा? q²/2 प्लस q प्लस सी। अब ये प्लस सी है कि नहीं मुझे नहीं पता, but normally this is the kind of a total cost function for this. If it is a long run function, then c equal to 0. C equal to 0 for long run, c not equal to greater than 0 for short run, negative होगा। Okay, this is a fixed cost. So what is the firm's total cost function? Explain why the total cost only up to a constant of integration which represent the fixed cost. समझ में आ गया? फर्स्ट पार्ट मैंने कर ही दिया, ठीक है। सेकेंड पार्ट में क्या पूछा है भाई? As you may know that in the earlier economics course, if a firm takes P is given on its decision, then it will produce its output as price equal to marginal cost. ठीक है, मतलब हम लोग प्रोडक्शन करेंगे P equal to MC. If the firm follows the profit maximizing rule, how much will it produce when P equal to 15? ठीक है। So marginal cost equal to derivative of the total function. Total cost function as a TC क्या है भाई अपना? q²/2 प्लस q प्लस सी, ठीक है। अब इससे फिर से मार्जिनल कॉस्ट मत निकाल लेना, टीसी ऑफ दिस थिंग। अब इस टीसी को प्राइस इक्वल टू 15 के हिसाब से देना है। पी इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट हमारा पी है, सो पी इक्वल टू q प्लस 1, q का वैल्यू आ गया 14। पुट दैट वैल्यू हियर, सो इन ऑर्डर टू गेट द टोटल कॉस्ट वैल्यू, ओके। सो फाइंडिंग द फिक्स कॉस्ट, कैलकुलेट द q एट द टोटल कॉस्ट। टोटल रेवेन्यू क्या होगा? Total revenue is P into Q, that is 15 into 14, क्या देता है? 15, 150, 210, that is the total cost. And total cost at 14 में क्या आएगा? 14 square plus 14 plus C, that is 98 plus 14, so 112 plus C मेरा total cost आ गया। ब्रेक इवन कंडीशन बोला है, तो टोटल रेवेन्यू इक्वल टू क्या होगा भाई? Total cost. It's a very different approach I am taking.
ऐसे देखने पर टर्म्स बहुत आसान लग रहे हैं लेकिन है नहीं, करने देने पर नहीं कर पाते। तो C इक्वल टू क्या आएगा भाई 98। सो द टोटल कॉस्ट फंक्शन अपना आ गया, सो दैट इज द फिक्स कॉस्ट इक्वल टू 90। सो स्पेशल वे ऑफ फाइंडिंग, टोटल कॉस्ट से ले लो और टोटल रेवेन्यू से ले लो एंड इक्वेट विद जीरो, मींस टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। हाउ मच विल प्रॉफिट इफ द फर्म इंक्रीजेस द प्राइस टू 20? अब तुम्हारे पास सारा फंक्शन, सी पार्ट में क्या आएगा 20 इक्वल टू क्यू प्लस 1। अब मार्केट में बेच भी रहा है ज्यादा चीजें, क्यू इक्वल टू 19, प्राइस क्या है बी। सो इस बार इसका रेवेन्यू कितना है 20 इंटू 19, 380 का रेवेन्यू लेके जा रहा है मार्केट से, ठीक है। टोटल कॉस्ट कितना है एट 19 में 19 स्क्वायर बाई 2 प्लस 19 प्लस 98, तो हमारा फिक्स कॉस्ट निकल चुका है। ओके, तो दिस इज 180.5 और 98 और 19 क्या देगा 117, so that is 297.5. Clear? So profit at P equal to 20 कितना होना चाहिए, टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट 380 माइनस 297.5। जहां जीरो प्रॉफिट था वहां से 82.5 का प्रॉफिट। ओके, फिर इसके बाद ई और डी और ई अब करने का जरूरत नहीं, यू कैन डू इट ऑन योर ओन। ओके, डी एन ई इज अ होमवर्क, काम बहुत करना है। इस बार से होमवर्क भी भर भर के देंगे, एक एक दिन में दो दो तीन तीन चैप्टर करना है हम लोग को। 2.5 revenue is 70q minus q square, 70q minus q square. Total cost is C equal to 100. What would be the output what level of output should the farm produce in order to maximize R minus C, and what will be the profit? पहला पार्ट आसान है कि नहीं? R is this, C is this, तो प्रॉफिट इक्वल टू R माइनस C। पाई क्या होगा भाई R माइनस C, 70 से ये गया तो 40q माइनस क्यू स्क्वायर, तो माइनस 2q स्क्वायर माइनस 100, इजंट इट? ये अपना प्रॉफिट हो गया। डी पाई डी क्यू क्या होगा 40 माइनस 4q, दिस इक्वल टू 0, q इक्वल टू 10। q इक्वल टू 10 में प्रॉफिट कितना होगा 40 इंटू 10, 2 इंटू 10 स्क्वायर माइनस 100, 400, 100 स्क्वायर 200 माइनस 100, 300, 100 इक्वल टू द प्रॉफिट। नेक्स्ट, अब पूछा है इसके साथ ही so the second order condition of maximum profit is satisfied, and does the solution of the category to obey marginal revenue cost to marginal cost rule explain? ठीक है, अच्छा सेकंड ऑर्डर कंडीशन क्या होगा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए, d2 by dq2 क्या होगा नेगेटिव होना चाहिए, दिस इक्वल टू व्हाट -4 नेगेटिव, सो कंडीशन इज सेटिस्फाइड। लास्ट पार्ट में चलेंगे, does the solution marginal revenue equal to marginal cost rule is satisfied or not? marginal revenue marginal cost अलग से निकाल लो, ये तो मुझे करने का जरूरत ही नहीं है। ये रेवेन्यू है, मार्जिनल रेवेन्यू क्या होगा भाई 70 माइनस 2q, मार्जिनल कॉस्ट क्या होगा भाई 2q प्लस 30, इक्वेट करो 70 माइनस 2q इक्वल टू 2q प्लस 30, 4q इक्वल टू 40, q इक्वल टू 10 हुआ ना, रूल मैच हो गया। सो डी पार्ट मैंने ऐसे ही कर लिया, सी पार्ट इज मैच्ड। चलिए आगे बढ़ते हैं। टू 2.6 2.7 होमवर्क है, बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन, बेसिक्स है करना है। बाकी उतना इसका काम का नहीं है, अब तीसरे चैप्टर में चले जाएंगे।
Preferences and utility, chapter 3. ठीक है, चैप्टर 3 का पहला मैं स्टार्ट करूंगा 3.12 से। 3.12 फटाफट ढूंढिए इसको, कहाँ है, मैं ही ढूंढ के बता दे तो तुम लोगों को 10-12 साल लग जाएगा। 3.12 मैंने मार्क करके रखा एक्चुअली कौन कौन सा क्वेश्चन होगा, इसीलिए। मिल जा, कहाँ गया रे? हाँ सर, पीडीएफ पेज नंबर 127। हाँ, पीडीएफ पेज नंबर 125 में पहुंच जाइए, 127 में पहुंच जाइए पीडीएफ पेज नंबर। अच्छा, मैं क्यों 3.8 छोड़ रहा हूँ समझ में आ रहा है ना? 3.8 में दिया हुआ u ऑफ xy इक्वल टू 3x प्लस वाई, फाइंड मार्जिनल यूटिलिटी, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, सब बेकार चीजें। तो डायरेक्ट चालू होगा बम बम बोले बोल के क्वासाई लीनियर फंक्शन से। नाम से ही थोड़ा डरावना है, ठीक है। क्वासाई लीनियर, क्वासाई शब्द से ही डर लगता है, क्वासाई रेंट ये वो, ठीक है। क्वासाई लीनियर मतलब पूरा पूरा लीनियर नहीं है, ठीक है। यू एक्स वाई ये देखिए लीनियर है ये, लेकिन ये अपना पार्ट लीनियर है नहीं, तो इसे उनके क्वासाई लीनियर फैशनेबल नाम दिया है, ठीक है। फाइंड द एमआरएस ऑफ द फंक्शन एंड इंटरप्रेट द रिजल्ट, कंफर्म द फंक्शन इज क्वासाई कॉनकेव आल्सो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द इंडिफरेंस कर्व। ये सी से मेन स्टार्ट होता है, मतलब एक अगर यूटिलिटी फंक्शन से इंडिफरेंस कर्व को निकालना है और मार्जिनल यूटिलिटी सबको कंपेयर भी करना है, तो एक एक करके करते। एमआरएस क्या होता है भाई? माइनस mu x बाई mu y। सो व्हाट इज mu x? डेल u डेल x, x के हिसाब से करेंगे 1, y के हिसाब से करेंगे 1 बाई y, सो दैट इज ओनली इक्वल टू y। सो माइनस पहले से ही आएगा, सो माइनस y, mrs इक्वल टू नेगेटिव। Interpret on the result, mrs minus y implies that the rate of which the consumer is willing to trade y for x, ठीक है। This means that कि अगर y increase करेगा, so the consumer is willing to give up more of y and the amount is itself y, मतलब पूरा का पूरा ही दे देगा। अच्छा, क्वासाई कॉनकेव है कि नहीं इसका एक थ्योरी में बता देता हूँ। क्वासाई कॉनकेव होने का थ्योरी, पहला रूल, इट हैज टू बी x टर्म इज लीनियर एंड y, ये जो log y टर्म है, इज कॉनकेव विथ रिस्पेक्ट टू y, ठीक है। कॉनकेव मतलब क्या होता है पता है ना? नहीं पता है, देखियो, z इक्वल टू log y, dz dy इक्वल टू 1 बाई y। फर्स्ट ऑर्डर से सिर्फ ऊपर नीचे जा रहा है कि नहीं ये पता चलता है, दिस इज स्टिल पॉजिटिव, सो ये इट्स एन अपवर्ड स्लोपिंग। कॉनकेव मतलब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, माइनस 1 बाई वाई स्क्वायर, लेस देन 0 कॉनकेव, ग्रेटर देन 0 कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन, ठीक है। तो इट इज कॉल्ड द कर्वेचर, फर्स्ट वन से मिलता है स्लोप, ठीक है। नेक्स्ट, फाइंडिंग द इक्वेशन ऑफ द इंडिफरेंस कर्व, लेट u of xy equal to u0, u of xy equal to u0, so x plus log y equal to u0, solving for x, so log y equal to u0 minus x, so y equal to क्या बोल सकते हैं? e to the power u0 minus x, so equation of the indifference curve is, this is the IC equation, e to the power total value of utility minus x। लॉजिक भी सही है, यूटिलिटी जितना हम लोग चीजें लेंगे बेसिक यूटिलिटी के हिसाब से उतना ही डिफरेंसेस आएंगे। ओके, नेक्स्ट, मार्जिनलिटी ऑफ एक्स एंड वाई, बाकी पार्ट करने का जरूरत नहीं। अब 3.14 में चले जाएंगे। CES यूटिलिटी फंक्शन के ऊपर, ये तो भर भर के आता है, ये भी आई हैव सीन इट इन IES एज वेल, ठीक है। तो ये सवाल क्या है? सो दैट द CES फंक्शन, वैसे फंक्शन दिखने में बहुत डरावना है, अल्फा एक्स टू दी पावर अल्फा बीटा गामा, अल्फा एक्स टू दी पावर गामा बाई गामा, बीटा वाई टू दी पावर गामा बाई, ऐसा फंक्शन तो तुम लोगों ने कभी
देखा नहीं होगा. Okay, CES function है constant elasticity of supply is homothetic. How does MRS dependent on Y by X show that the results of the party agree with the discussion in the alpha equal to 1 in the perfect substitution, and this is for Cope Douglas. बहुत सारे important information इसके साथ जुड़े हुए हैं. ठीक है, तो चलिए U of XY ऐसा कुछ दिया, हम लोग इसको थोड़ा सुंदर देखते हुए बना देते हैं जहां से टपक के आया है. ठीक है, ये सुंदर बन गया. CS is homothetic and find out the MRS. MRS क्या होता है? माइनस NUX by NUY. तो यहाँ भी हम लोग को डेरिवेटिव भी निकालना पड़ेगा. NUX क्या होगा भाई? X to the power gamma minus 1. मैंने सही किया कि नहीं किया? सही किया ना? अरे देखो ये तो नीचे आएगा, ये नीचे आती है, इससे के साथ ये कट गया तो ये गामा माइनस 1. MUY क्या होगा भाई? बीटा y to the power gamma minus 1. MRS क्या आ जाएगा? माइनस अल्फा बाई बीटा x by y whole to the power gamma minus 1. So MR is dependent on x by y ratio. If MR is dependent on x by y ratio, that means the function is homothetic. और होमोजेनस क्या होता है? होमोजेनस का थोड़ा रूल अलग है कि ऊपर नीचे, जैसे होमोजेनस ऑफ डिग्री 1 तो u इक्वल टू मान लो एक्स स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर, ये होमोजेनस हो गया. u इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये भी होमोजेनस हो गया. एक्स स्क्वायर बाई वाई प्लस एक्स, ये होमोजेनस है लेकिन डिग्री इसका 1 है. लेकिन नॉन होमोजेनस क्या है? ध्यान से देखिए, होमोजेनस भी सिखा देते हैं. मतलब ऊपर नीचे x को लैम्डा टाइम्स चेंज करना, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स वाई. ध्यान से देखो, ये करोगे तो लैम्डा स्क्वायर एक्स स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई लैम्डा स्क्वायर एक्स वाई. लैम्डा लैम्डा कट जाएगा, होमोजेनस ऑफ डिग्री 0. लेकिन मान लो एक्स स्क्वायर वाई प्लस लॉग वाई बाई एक्स, ये होमोजेनस नहीं. ऊपर से यहाँ से तो क्यूब आएगा, यहाँ कुछ कॉमन नहीं आएगा, यहाँ से 1 आएगा, कटेगा. तो दिस इज नॉन होमोजेनस एंड दिस इज होमोजेनस. डिग्री नेगेटिव हो सकता है, हाँ. ध्यान से देखिए, एक्स बाई वाई स्क्वायर, यहाँ लैम्डा कवर जाएगा, यहाँ नीचे लैम्डा स्क्वायर, तो लैम्डा टू द पावर माइनस 1, होमोजेनस ऑफ डिग्री -1. ठीक है, 40 से 50% क्वेश्चन आजकल यही सब न्यूमेरिकल से भर भर के आते, सो दैट यू नीड टू बी वेरी गुड एट. नेक्स्ट, सो दैट द रिजल्ट ऑफ द पार्ट 1 एग्रीज विद द केसेस लैम्डा इक्वल टू 1. ध्यान से देखिए, इफ गामा इक्वल अल्फा बीटा गामा, दैट डेल्टा डेल्टा इक्वल टू 1 में क्या होगा? एमआरएस क्या हो जाएगा? this to the power 1 minus 1 0 is equal to minus alpha by beta. So this will only become minus alpha by beta. So this is the perfect substitute का characteristic है. So MRS is independent of x by y ratio. Independent हो जाएगा. और 0 हुआ तो this equal to 0 में minus alpha by beta and this will be x by y whole to the power minus 1 become y by x. Okay. So u of xy will be as log of alpha x log of beta y. So that is equal to a Cope-Douglas structure. MRS is falling if lambda equal to less than 1. Less than 1 में क्या होगा? वही फॉर्मेशन. लेस देन 1 मतलब क्या है? लेस देन 1 मतलब कुछ भी ले लो, -2, सो -3. अगेन सेम वैल्यू इसी फॉर्मेशन में डाल के कर सकते हैं. अच्छा, x इक्वल टू y, लास्ट पार्ट डी में देखो, x इक्वल टू y होने पर होगा MRS डिपेंडेंट ऑन रिलेटिव साइजेस ऑफ अल्फा एंड बीटा. ऑब्वियसली x बाई y अगर 1 हो जाएगा, सो दिस इज ओनली बिकमिंग माइनस अल्फा बाई बीटा ना. सो दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ एनीथिंग. काम खत्म. आज है इसीलिए हल्का हल्का क्वेश्चन करा रहे हैं, नेक्स्ट दिन से भारी क्वेश्चन ही आएगा. चैप्टर 4 में चले जाओ, यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन एंड द चॉइस. फटाफट बोलो, पेज नंबर.
151 থেকে শুরু হচ্ছে। 151। हाँ, इसका हम लोग 4.1 से ही चालू हो जाएंगे। क्या पूछा है? अ फंक्शन में डिराइव्स यूटिलिटी फ्रॉम मार्टिनीज। मार्टिनी क्या है पता है? शराब है, बहुत ही घटिया चीज होता है, बहुत कॉस्टली भी होता है। ठीक है, वोडका मार्टिनी ये सब बेकार चीजें हैं। ठीक है, ये सब फॉरेन किताबों में पढ़ने से यही मुश्किल है। शराब पिएगा, ये करेगा। ठीक है, सो मिस्टर ए डिराइव्स utility from martinis in proportion to the number of drinks. बाप रे, मर जाएगा तो पीते। Mr. A is very particular about his martinis. However, he only enjoys them made with exact proportion of 2 parts of gin and 1 part of vermouth. ठीक है? Hence, we can derive that A's utility function is um equal to minimum of G by 2 and V for vermouth. ठीक है, दोनों में से जो मिनिमम है। Graph is indifference curve in terms of G and P for various levels of utility. Show that regardless of the prices of the two investors, A will never alter way of maxis. आज ग्राफ में नहीं जा रहा है, सिर्फ मैथमेटिकल कर रहा है। ग्राफ वाला नेक्स्ट दिन कराएंगे। कैलकुलेट द डिमांड फंक्शंस फॉर G and P। कैसे होगा? अच्छा, ये दोनों मिनिमम ऑफ दिस थिंग है और ये दोनों इक्वली अगर ये लेता है तो G by 2 इक्वल टू V हो सकता है। तो G इक्वल टू 2V इस फॉर्मेशन से होगा। ओके, तो इसका जो इंडिफरेंस कर्व होगा ना, इट्स अ स्ट्रेट लाइन इंडिफरेंस कर्व बट G इक्वल टू 2V, द स्ट्रेट IC। खैर, सेकेंड पार्ट में चलते हैं। सेकेंड पार्ट में क्या होगा? कैलकुलेट द डिमांड फंक्शंस फॉर G एंड V। अच्छा, डिमांड फॉर वर्माउथ क्या है भाई? U इक्वल टू V डायरेक्ट है। एंड डिमांड फॉर जिन कितना मांग रहा है? G इक्वल टू 2V है। V इक्वल टू U है तो G इक्वल टू 2U। डिमांड फंक्शन सार G इक्वल टू 2U हो गया और एक हो गया U इक्वल टू V। G इक्वल टू 2, U इक्वल टू V। So these demand functions show that the amount of gin and vermouth Mr. A will consume for desired level of utility only. ठीक है, so these functions are associated with the utility level. Okay, जिनसे उसको ज्यादा किक मिलता है। एक भी जिन पिया तो डबल यूटिलिटी, वर्माउथ से कम। एक देखो, जिन को 1 यूनिट समझो, 1 यूनिट जिन से 2 यूनिट्स का यूटिलिटी, 1 यूनिट वर्माउथ से 1 यूनिट का ही यूटिलिटी मिलता है। इसके बाद से क्वेश्चन बहुत टफ हो जाता है। अब पूछा इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन, बहुत ही टफ है। डायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन में क्या है? ये पैसा है, ये मेरा बजट है, निकल गया। अब उल्टा तरीके से इसे निकालना पड़ेगा, एक्सपेंडिचर्स के हिसाब से जाना पड़ेगा। यहां से ये टफ है। इन IUF, indirect utility function, the cost of consuming G and V, G इक्वल टू क्या दिया है? 2U और V इक्वल टू सिंगल U। एक्सपेंडिचर कितना है इसका? PG इंटू G प्लस PV इंटू V। ठीक है, तो PG इंटू क्या होगा? G की जगह पर 2U, G की जगह पर 2U, ऐसा यूटिलिटी घुसा नहीं इसके अंदर। और PV इंटू U की जगह पर क्या होगा? सिर्फ U ही आएगा। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? 2PG प्लस PV होल इंटू U। सॉल्विंग फॉर U, तो 2 इंटू PG प्लस PV इंटू U इक्वल टू I। ओके, I इक्वल टू क्या है? इनकम। ये मैंने खुद से दिया है। तो U इक्वल टू क्या हो गया? I बाई
2PG plus PV. इनकम दिया नहीं था ना कहीं. So indirect utility function is IUF is V of I. मतलब indirect utility function में इनकम रहता है, प्राइसेस रहते हैं. ठीक है. I by 2PG plus PV. मतलब इतने पैसों में कितना मैक्सिमम यूटिलिटी हो सकता है. और फिर एक्सपेंडिचर फंक्शन, एक में सारा हो जाएगा. और भी है क्या? डी के बाद ई एफ जी है ना? नहीं है, बच गया. और है एक्सपेंडिचर फंक्शन. एग्जाम में यही सब आता है और लोग कर नहीं पाते क्योंकि किताबों में ये किया नहीं. You can't find a single book which has this solution. Pindike and Rubenfeld is good, but they don't have this consumer part so strongly. Okay, उसका मार्केट का पार्ट बहुत अच्छे से दिया है, वो मार्केट वहां से करे. ओके, सो एक्सपेंडिचर फंक्शन कैसे निकालेंगे? एक्सपेंडिचर तो हम लोग का निकाला हुआ ही है. सो एक्सपेंडिचर क्या है? किस किस के ऊपर खर्चा कर रहा है? यू, पीजी एंड पीवी. सो पीजी इंटू जी, PV into V. So PG into 2U plus PV into only U. So 2PG plus PV whole into U. Okay, expenditure for utility level this. So expenditure की ये function नहीं. So now the expenditure function is, oh no, sorry, this is the expenditure function से भी तो यही आ रहा है. So this is the expenditure function itself. तो हमने क्या क्या निकाला? डिमांड फंक्शन G इक्वल टू TU, एक्सपेंडिचर फंक्शन और इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन. नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ेंगे. 4.3. यस सर বলছি हम लोग क्या ये इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन एक्सपेंडिचर फंक्शन निकालने के अलावा निकाल सकते हैं? क्योंकि यहाँ पर तो हम IUF is dependent on expenditure function. इसीलिए मैंने ये दो बार एक्चुअली निकाल दिया. Actually, I already find out this expenditure. They could have given the expenditure function first and this part second. But without expenditure function, you can't go for IUF if the value of the all the functions are not given. Value देने पर वैसे questions भी इसी किताब में ही है. So we will come to that. Okay. क्या नाम है? Mr. Odd Ball enjoys commodities X and Y according to the utility function. 4.3 हाँ 4.3. U क्या है? रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस उसका. मिस्टर PX है 3, PY है 4, $50 पैसा खर्चा करने के लिए. इट मे बी इजियर टू फाइंड U square rather than U, and Y won't alter your results. पहला वाला तो आसान है. वैसे U square क्या है? X square plus Y square. Subject to a budget process 3x plus 4y equal to 50. खुद से निकाल लिया हम लोगों ने. लाग्रांजियन क्या है? फोर बाई पार्शियल डेरिवेटिव करके सीधा सॉल्व हो जाएगा. इसमें उतना टेंशन लेने वाली कुछ बात नहीं है. Lx इक्वल टू 2x माइनस 3 लैम्डा इक्वल टू 0, Ly इक्वल टू 2y माइनस 4 लैम्डा इक्वल टू 0, और बाकी तो ये इसके साथ 0 आएगा. सो 2x y इक्वल टू क्या आएगा? 4/3x. डाल दीजिए इसको इसमें. 3x प्लस 4y और इस वाले फंक्शन में 3x 4x प्लस 9y. So 3x plus 16x by 3 equal to 50. 3 3 9 16 9 25. 25 x equal to 6. Y equal to 8. Okay. So x and y and utility will be 10. Next यहाँ से start होता है B. Graph the indifference curve और ये आसान है. 6 square plus 8 square whole root 10.
4.5 भी आसान है, घर में कर सकते हैं। एक पेचीदा सवाल था, कौन सा था? हाँ, 4.7। यंग कनोजर। अच्छा, ये कनोजर पता है क्या होता है? जिसको फूड के बारे में सब पता है। मैं जोमेटो में कनोजर का 14 लेवल तक पहुंचा था, पहले ऐसे देता था। सो आई वाज अ कनोजर लेवल जोमेटो रिव्यूअर। ठीक है, मतलब मैं कहीं भी जाता था, सो आई यूज्ड टू, ऐसा कुछ मत है, मैं हमेशा रिव्यू करता था। सो आई हैव गिवन ऑलमोस्ट लाइक 250 प्लस रिव्यूज ऑन जोमेटो। और मैं रिव्यू देता था तो वो रिव्यू एकदम ऊपर में आ जाता था बात। एंड आई यूज्ड टू राइट, ये चैट जीपीटी का रिव्यू नहीं है, ये प्रॉपरली फोटो देके। सो व्हेनेवर आई गो आई यूज्ड टू गिव अ रिव्यू। सो कनोजर इज जस्ट लाइक दैट। बाकी इन लोगों ने फिर रिव्यू का ये लेवल देना बंद कर दिया बाद में। आई डोंट नो स्टिल आई हैव दोस रिव्यूज और नॉट। ओके। और मैं कभी कभार, मैं अगर 1 स्टार देता था तो रिव्यू रेस्टोरेंट वाले से कॉल आता था, सर ये हटा दीजिए, हम लोग आपको खाना खिला देंगे फ्री में। मतलब वैसे में बिकने होता तो हो ही जाते। तो पढ़िए इस सवाल को, खनोजर वाला। You know, I got 763 followers on Zomato. So I've given 306 reviews with 579 photos. It's not a joke. You guys can see it. तो इससे क्या पता चलता? Why I've shown it to you? There's nothing too big thing here. ठीक है, Why I'm showing it? ये मैं कभी भी जिंदगी में कुछ भी चीज किया हूँ, इट्स लाइक, मतलब एक बार चालू हो गए तो करते रहे। इट्स लाइक, सो ऐसा नहीं कि पैशनेट की तरह, बट वंस आई गेट स्टार्टेड आई वेंट ऑन एंड बहुत आसानी से I never stopped those things. It was a very continuance with this thing which goes on and on and on. Same thing with these numerical questions which we are doing. So once I get started, now we have done around almost like 15-20 questions आज हो ही चुका है, सब sections को अगर सारे लेंगे तो budget constant को लेते हैं, इस sum को करते हैं और आज के लिए खत्म करते हैं। So you of एक young Khanuja has $600 to spend or build a small wine cellar. Okay. ऐसा लगता है जिसको सिर्फ शराब का ही ये है, ऐसा उसे कन्वर्जन नहीं, एनी फूड का सारा जिसको नॉलेज है उसको भी कहते हैं। शी एंजॉयज टू vintages, in particular a 2001 French Bordeaux and $40 per bottle, and a less expensive 2005 California varietal wine price at $8. The utility is, you can see that WF, the French, is giving you 2/3, almost like 66.7, with only 33% comes from the California wine. So how much of each wine should be
purchase. Okay, so it's like a 40 WF plus 8 WC equal to 600. That's the budget line we have. Simplifying, we will get it 5 WF plus WC 8 से जा रहा है और 8 से 675 में जाएगा. ठीक है. So WC equal to 75 minus 5 WF. Okay, so California. So next we can go for the Lagrangian structure. So Lagrangian कैसा दिखेगा यहाँ? WF 2/3, WC 1/3 plus lambda 75 minus 5 WF minus WC. So del L, del WF, del L, del WE, and rest of the stuff is very easy, and you have to get a ratio of LF, LC, L lambda. ये तीनों को कैलकुलेट करो and WC by WF को फाइंड कर लो. And you can substitute back into the budget constant and directly it will be done. So almost this chapter में yes. सर यहाँ पर हम लोग ये यूटिलिटी फंक्शन का क्यूब कर सकते हैं. यूटिलिटी फंक्शन कहाँ गया? अच्छा, इसके बाद 4.10 ना एनालिटिकल प्रॉब्लम है, इससे नेक्स्ट दिन से स्टार्ट करेंगे. आप लोगों को इसके पहले तक सारा करना है. 4.10 से आई विल स्टार्ट. हाँ, यूटिलिटी फंक्शन का क्यूब करने से फायदा नहीं है. ओके, दिस टाइम इट विल नॉट बी यूजफुल बिकॉज यू विल बी पुटिंग इनटू दिस बजट कांस्टेंट. ओके, एंड कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि कर नहीं सकते, बट प्रॉब्लम क्या होगा? इट इज इजी टू हैंडल अ स्क्वायर देन अ क्यूब. ओके, पिछले बार में स्क्वायर था इसीलिए डायरेक्टली किया था. और ध्यान से देखो, वो सिर्फ एक के लिए रूट था, रूट बाहर में था. इट वाज नॉट अफेक्टिंग एनी ऑफ द सिस्टम. यहाँ पर पूरा का सिस्टम ही W स्क्वायर एंड ओनली W बन जाएगा. यू कैन स्टिल डू इट बट इट विल क्रिएट कॉम्प्लिकेशंस इनटू द डिफरेंशियल. बाद में ये पार्शियल डेरिवेटिव करना और मुश्किल हो जाएगा. ठीक है, बट जरूरत नहीं है, यहाँ पर डायरेक्टली डेल एल डेल W करो, बाकी तो सब लीनियर ही. ठीक है. So this is done. So we have done till chapter 4.5. 2 से 4.5 तक हुआ. This doesn't mean that we have to solve the entire book. Around और 7-8 chapter इसके अंदर करना पड़ेगा. ऐसे 2 classes में we will finish it up. Next sessions will be much more engaging. That's it for today. Sir, I had a question regarding